Hello everyone, again welcome to our English class. I'm your Ashish sir. So, in our last video, we have understood the activity 1 and 2 about various scientists who contributed to our India. Much more. Okay, this is lesson number 2, scientists and inventions. Now, let's see the activity 3. Activity 3, answer the following questions. So here we have some questions to answer. Let's see the questions. અહીંયા આપણે થોડા questions ના answer આપવાના છે. ચલો જોઈશું એને. Good. First, list the names of any 3 scientists. So here very first question is we have to write the name of any 3 scientists. I have written 1. Dr. APJ Abdul Kalam. Okay. Number 2. C.V. Raman. And number 3. Vikram Sarabhai. So let's see the picture of this famous scientist. You can see this is the picture of Dr. APJ Abdul Kalam. And he is called Missile Man of India too. તો ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ સાયન્ટિસ્ટ તો હતા જ અને એમને મિસાઇલ્સ બનાવી હતી ફોર ઇન્ડિયા. તો એટલા માટે એમને મિસાઇલ મેન ઓફ ઇન્ડિયા પણ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? મિસાઇલ મેન ઓફ ઇન્ડિયા. રાઈટ. નંબર 2, he is another scientist, C.V. Raman. ઓકે, આપણે એક્ટિવિટી 2માં એમના વિશે ઘણું બધું જાણ્યું ને. તો this is C.V. Raman. Next, this is Dr. Vikram Sarabhai. So these were the 3 scientists of India. Okay. Now let's see again the question 2. What do scientists do? साइंटिस्ट क्या करते हैं? आप सबको तो पता ही है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं. Let's see the answer. Scientists study things around them and discover or invent new things. तो साइंटिस्ट जो है स्टडी थिंग्स अराउंड देम, यानी कि अपने आजू बाजू में सभी चीज़ें जो होती है उनको स्टडी करते हैं, उनको ध्यान से देखते हैं और उसमें से डिस्कवर मीन्स कुछ नया ढूंढ सके तो वो ढूंढते हैं और इन्वेंट न्यू थिंग्स या नया कुछ भी बनाते हैं. दिस इज द वर्क ऑफ साइंटिस्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स न्यूमरस एंड डिस्कवरी. फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स न्यूमरस एंड डिस्कवरी. चलो, वेरी फर्स्ट इज numerous, numerous. Meaning of the word numerous is great in number or quantity. Okay, कोई भी चीज ज्यादा हो उसको न्यूमरस कहते हैं. कोई पण वस्तु વધારે હોય, વધારે નંબર્સમાં, એને આપણે ન્યુમરસ કહી શકાય. નેક્સ્ટ, ડિસ્કવરી. डिस्कवरी मीन्स टू फाइंड समथिंग. तो डिस्कवरी और इन्वेंट दोनों का मतलब होता है टू, डिस्कवरी का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग और इन्वेंट का मतलब होता है टू मेक समथिंग न्यू. तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? लेट मी टेल यू. तो एमा डिफरेंस है कि डिस्कवरी मीन्स टू फाइंड समथिंग which is already in the world. ડિસ્કવરી એટલે કંઈક નવું એવું શોધવું જે દુનિયામાં પહેલેથી જ છે. જેમ કે ડૉક્ટર મેરી ક્યુરી ઇન્વેન્ટેડ રેડિયમ. તો उन्होंने रेडियम, डॉक्टर मैरी क्यूरी फाउंड रेडियम. तो उन्होंने रेडियम ढूंढा. तो रेडियम पहले ही दुनिया में था. राइट. तो ये हुई डिस्कवरी. अब इन्वेंशन.
To invent means to make something new. Alexander Graham Bell invented telephone. એવું આપણે કહી શકીએ ને, એમને ટેલિફોન બનાવ્યો. તો this is the difference between discovery and invention. Got it? Good. ચલો next line. Read more. Who invented the computer? So there is one question for us. Who invented computer? Let's see. It is not a question with a simple answer. तो who invented computer का आंसर तो हम ऐसे ही दे सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज invented computer, right? But it is not a simple answer, as many inventors contributed to the history of the computer. તો ચાર્લ્સ બેબેજ has made the computer, but એની અંદરના જે બધા પાર્ટ્સ છે, મધરબોર્ડ આવે, બીજું ઘણા બધા બોડી પાર્ટ્સ આવે કોમ્પ્યુટરના, તો બધું ચાર્લ્સ બેબેજ એમણે ઇન્વેન્ટ કર્યું ન હોય. તો અલગ અલગ લોકો, અલગ અલગ સાયન્ટિસ્ટે એનું ઇન્વેન્શન કર્યું હોય અને બધું મિક્સ થઈને એક કોમ્પ્યુટર બન્યું હોય. લેટ્સ સી. It is a complex piece of machinery made up of many parts, each of which can be considered a separate invention in itself. જો મેં હમણાં જ કહ્યું ને કે એ ઘણા બધા કોમ્પ્લેક્સ મીન્સ ડિફિકલ્ટ, નોટ ઇઝી પીસીસ, અલગ અલગ પીસીસ મશીનરીના જે હોય એનાથી બધા ઘણા બધા પાર્ટ્સ બન્યા હોય અને એનાથી એ બધા મિક્સ કરીને એક કોમ્પ્યુટરનું ઇન્વેન્શન થયું હોય. રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ. Page number 13. Everybody see the page number 13. Part 2. Famous discoveries and inventions. तो फेमस डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का पार्ट 2 अब हम जानेंगे. फर्स्ट लाइन. आर्किमिडीज. आर्किमिडीज वॉज ए ग्रीक साइंटिस्ट. आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे बात है. लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ आर्किमिडीज. यू कैन सी ये आर्किमिडीज साइंटिस्ट का पिक्चर है. ऐसे दिखते थे आर्किमिडीज. ओके, गुड. तो आर्किमिडीज वॉज ए ग्रीक साइंटिस्ट. ग्रीक कंट्री में रहने वाले वो साइंटिस्ट थे, इसलिए उनको ग्रीक साइंटिस्ट बोला जाता है. ओके. ही लिव्ड इन सिराक्यूज नियरली 2000 years ago. तो he lived in Syracuse. Syracuse is the name of one city situated in Italy. Okay. तो 2000 years पहले आर्किमिडीज सिराक्यूज, आई एम रिपीटिंग सिराक्यूज. ओके. सिराक्यूज सिटी में रहते थे. आगे सेकंड लाइन. द किंग ऑफ द लैंड वांटेड टू वियर अ गोल्डन क्राउन. तो हम सबको पता है कि 2000 years पहले मोनार्ची सिस्टम थी वर्ल्ड में, तो वहाँ किंग तो हो गए ही. तो किंग को एक बार गोल्डन क्राउन पहनने की इच्छा हुई. आगे. ही गेव सम गोल्ड टू अ गोल्डस्मिथ टू मेक अ सुटेबल क्राउन. तो उन्होंने एक गोल्डस्मिथ जो गोल्डन ऑर्नामेंट्स बनाते हैं ना, उनको बुलाया और कहा कि आपको एक क्राउन बनाना है. तो व्हाट इज क्राउन? दिस इज द क्राउन अ किंग यूज्ड टू वेयर इट. हम सबको पता है कि ऐसा क्राउन किंग अपने हेड के ऊपर पहनते हैं. राइट? तो ऐसा क्राउन बनाने के लिए किंग ने गोल्डस्मिथ को बोला. लाइन नंबर 3. आफ्टर अ फ्यू डेज द गोल्डस्मिथ केम विद द क्राउन टू द किंग. तो आफ्टर सम डेज द गोल्डस्मिथ मेड द क्राउन एंड वेंट टू द किंग. थोड़े दिनों के बाद गोल्डस्मिथ में क्राउन बना लिया और वो किंग के पास गए. द क्राउन वॉज वेट. फिर क्राउन का वजन किया गया. जितना गोल्ड
किंग ने दिया था गोल्डस्मिथ को, उतना ही ये क्राउन है कि नहीं वो देखा गया। The weight of the crown was equal to the gold given to the goldsmith by the king. तो क्राउन का वेट उतना ही था जितना किंग ने गोल्डस्मिथ को गोल्ड दिया था। द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन। फिर किंग ने क्या किया, जो क्राउन है उसका कलर देखा। हम सबको पता है कि गोल्ड का कलर कैसा होता है, तो वैसा ही कलर क्राउन का होना चाहिए ना, क्योंकि इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, राइट। तो ही सस्पेक्टेड दैट द गोल्डस्मिथ हैड स्टोलन सम गोल्ड। तो सस्पेक्टेड यानी कि डाउट, किंग को गोल्डस्मिथ के ऊपर थोड़ा डाउट हुआ कि इस गोल्डस्मिथ ने थोड़ा गोल्ड चुरा लिया है। बट द किंग वॉज नॉट श्योर, बट किंग श्योर नहीं थे। द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, मगर किंग सच क्या है वो जानना चाहते थे। ही आस्क्ड हिज कोर्ट साइंटिस्ट आर्किमिडीज टू फाइंड आउट। फिर उन्होंने ये टास्क सच क्या है वो ढूंढने का काम आर्किमिडीज को दिया। द किंग सेड फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज बीन स्टॉलन। किंग ने बोला कि आपको ढूंढना है कि इस क्राउन में से कितना सोना चुराया गया है। हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ, आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट। One day he was about to have his bath, but he was busy thinking. तो आर्किमिडीज ने दिन रात इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो गोल्डस्मिथ तो थे नहीं, गोल्डस्मिथ अगर होते तो आसानी से पता चल जाता ना। बट ही वॉज अ वेरी क्लेवर पर्सन, अ मैथमेटिशियन एंड अ साइंटिस्ट। तो उन्होंने दिन रात सोचना शुरू किया। एक दिन वो बाथिंग करने के लिए बाथ टब पे जा रहे थे और सोच रहे थे आगे। ही डिड नॉट नोटिस द बाथ टब, तो उन्होंने बाथ टब देखा नहीं। द वाटर इन द बाथ टब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम। तो बाथ टब जो था उसमें पानी पूरा भर गया था, पूरा बाथ टब जो है वो फुल ऑफ वाटर हो गया था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज बाथ टब, राइट। तो the bathtub was full of water. Next, he slid into the bathtub. वो bathtub के अंदर गए। Immediately, a large quantity of water flowed over the brim of the bathtub. जब वो अंदर गए तो ब्रिम तक भरा हुआ था पूरा bathtub, तो वो अंदर गए उसके अंदर, तो bathtub के अंदर का जो पानी था वो उछल के बाहर गिर गया, राइट। आगे, he noticed this, उन्होंने ये देखा। Suddenly there was a flash in his mind. He jumped out of the bathtub shouting, "Eureka, Eureka!" तो अचानक ही उनके दिमाग में कुछ नया आइडिया आया। फ्लैश, he jumped out of the bathtub, वो शाउटिंग करते हुए, चिल्लाते हुए अपने बाथटब से आगे निकल गए और चिल्लाते हुए क्या बोलने लगे, यूरेका, यूरेका। तो यूरेका इन ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट। तो ग्रीक कंट्री में यूरेका का मतलब होता है मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। इसका मतलब यह है कि आर्किमिडीज को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। अब देखते हैं आंसर क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, thus it was found that different metals of the same weight have different volumes. Objects put in water will displace water. The displaced water will be equal to their volume. तो इससे हमें ये पता चलता है कि गोल्डस्मिथ ने उसमें से गोल्ड स्टॉल किया था, मगर उसके साथ दूसरे ऐसे मेटल्स का यूज किया जो गोल्ड जैसा हो और उसके साथ मिक्स कर दिया। तो ऐसे आर्किमिडीज को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो डियर स्टूडेंट्स, isn't it very good story? Okay, so
Let's see and see you in the next video.